Hello, all of you. This is the third episode of Beyond the Medicine series, and it tells about the options one can opt out after the MBBS. So, this video is especially about the permanent employees, permanent doctors who are working in the government sector or central, in the under the central government or the any PSU or autonomous bodies, but working as a permanent employee. And also, this is important for the candidates who worked in the rural area for 2 or more than 2 years, especially. So, if you see that in the DNB quota, there is the Tata Main Hospital Jamshedpur is allotted at the 7595 rank, and the Gangaram Hospital Delhi or Hindura Hospital is allotted around 1000 rank or below 1000 rank from the NBEMS or DNB quota. And if you see the rank for the general medicine for the Gangaram Hospital Delhi, it is allotted in the 68K rank, and for the Jamshedpur same hospital, the permanent employee got this seat in the 76K rank, and even the radio diagnosis is allotted in the 66K rank, which is almost impossible after 2K rank. So this is all about the DNB seats, DNB post MBBS DNB seats. So you also see the option in the INICT that there is a option of expense detail, that have you ever worked in the rural area. So this is the apply for the candidates who have worked for the minimum of 2 years in the rural area, and you can mark tick here. What are the benefit for the candidate who applied yes here or who ticked the yes here? We'll explore later in the video. So let's start with the NICT. The point about NICT that who can apply here, the candidates who are the permanent employee of the any central state government, or in the armed forces or in the public sector undertaking or in the autonomous body, uh, that candidate can be sponsored by the respective government or defense authority or the competent authority of the PSU or autonomous body. So these type of candidate can be applied in the sponsored candidate seats. The main point of these INICT sponsored seat that only state can sponsor only one candidate. Okay, this is the main difficult things. And as I asked from the seniors and who have worked or who have applied in the sponsored seat for the NICT, I talked to them and they told कि सर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो आपका स्टेट है वो उनको ही प्रीफर करता है जिनका एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट नॉर्मली क्या है, जो मेन पॉइंट ये है जो ड्रॉप बाई की कि ओनली ओनली वन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, ये भी एक डिफिकल्ट पॉइंट है। ओके, और बाकी जो पॉइंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल उन्होंने बाकी पॉइंट्स के अंदर ये बोला हुआ है कि जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की जो एनओसी का फॉर्म भरेगा वो ओरिजिनल फिल होके ओरिजिनल ही आपको सबमिट करवाना है। So what are the eligibility? It is a permanent employee of the central state government, armed forces, any PSU, any autonomous bodies who can sponsor them. स्पॉन्सर का सिंपल मतलब ये है कि जो आपको जो सैलरी मिलेगी, जो सैलरी है, जो स्टाइपेंड है, वो INSIT नहीं देगा आपको। जो सैलरी है, जो आपका जो स्टाइपेंड है, वो आपको आपका स्टेट या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, स्टेट या आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका डिफेंस सेक्टर है, आपका PSU है, आपकी कोई ऑटोनोमस बॉडी है, वो आपको क्या करेगी, स्पॉन्सर करेगी, तो वही आपको स्टाइपेंड देगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है जो कि एक फॉर्म है, कौन साइन करेगा, इट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द हेल्थ। ये आपका जो DGHS जो भी है, जैसे दिल्ली के अंदर शायद DGHS है, राजस्थान के अंदर क्या है, जो यहाँ का प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जो कि संयुक्त शासन सचिव ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, वो तो ये क्या करेंगे, आपको ये परमिशन देंगे। इनके जो साइन है वो मस्ट है यहाँ पे। सर मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है? देखो, मिनिमम मार्क्स इन दी MBBS एग्रीगेट जो UR या OBC WS के लिए 55 है और SC ST के लिए 50% है एग्रीगेट MBBS के जो मार्क्स है। लेकिन इसके अंदर बेनिफिट दिया हुआ है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को या फिर जो परमानेंट एम्प्लॉय उनको, कि सर जो FMC के अंदर जिन्होंने वर्क किया है उनको 5% एडिशनल मार्क की, सर 50% उनके लिए MBBS एग्रीगेट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो MD MS जो के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं अदर कैंडिडेट्स अपार्ट फ्रॉम AFMC के अलावा, उन्होंने या 3 और मोर देन 3 ईयर वर्क किया है, तो उनकी जो MBBS की कट ऑफ है वो 50 to 53
50% तक भी चलेगी। बाकी पीजीआईएमआर के लिए ये जो क्राइटेरिया है 50% माना है उन्होंने ऑलमोस्ट। देखो अब यहाँ पे देखिए कि सर मिनिमम कितना वर्क चाहिए मुझे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कि मैं INICT की स्पॉन्सर्ड सीट के लिए अप्लाई कर सकूँ। दिस इज यहाँ पे लिखा हुआ है जो इसका फॉर्म है अपेंडिक्स सी, उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम यू हैव टू वर्क एटलीस्ट फॉर द 3 ईयर टू अप्लाई दिस। एंड इसके बाद में एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि जो स्पॉन्सर्ड किया, देखो ये बॉन्ड नहीं है यहाँ पे जो 5 ईयर की बात चल रही है। इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि जो स्पॉन्सर्ड कर रही है आपको जो भी अथॉरिटी, वो कम से कम ये तो इंश्योर कर रही है ना कि आप 5 ईयर वहाँ पे जाके वो आपको 5 ईयर वर्क प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, दिस इज नॉट द बॉन्ड, दिस इज योर सर्विस गारंटी एक्चुअली, सिंपल। और देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है INICT के लिए, जो मेन पॉइंट है वो है कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, स्पॉन्सर्ड सीट वो ही आपको मिलेगी जो कि आपके स्टेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे राजस्थान के अंदर इमरजेंसी मेडिसिन की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप ओनली इमरजेंसी मेडिसिन सीट के लिए ही स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर सकते हैं INI-SET के अंदर, ये रूल है। इमेजिन कीजिए मेरे राजस्थान के अंदर MS ऑर्थोपेडिक और मैं MS ऑर्थोपेडिक के लिए INI-CT के लिए अप्लाई करूंगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे 2020 के आसपास में या 2019 के आसपास के अंदर उत्तराखंड के अंदर डरमा की या साइकेट्री की सीट अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पे कैंडिडेट क्या कर सकते थे, INI-CT के थ्रू अप्लाई करते थे। जो इन सर्विस कैंडिडेट है, जो परमानेंट कैंडिडेट है, वो अप्लाई कर सकते थे। अब देख लीजिए जैसे राजस्थान के कैंडिडेट इमरजेंसी मेडिसिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज मेन रूल, जो सबसे डिफिकल्ट रूल है। दो रूल डिफिकल्ट है यहाँ पे कि आपकी स्टेट के अंदर वो सीट अवेलेबल या वो जो सब्जेक्ट है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सेकंड, कि आपको स्पॉन्सर्ड करने के लिए स्टेट ओनली एक नेम प्रोवाइड करेगा INI-CT को, ऐसे नहीं कि राजस्थान से 4 लोग को स्पॉन्सर किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर उसके अंदर जो सीट मिली थी इस बार जुलाई 2025 का डाटा है ये। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर जनरल जो मेडिसिन मिली थी वो मिली थी 3710 रैंक पे, 3 के रैंक पे, ऑलमोस्ट 3.5 के रैंक है, जो कि शायद टॉप 50 कैंडिडेट्स या टॉप 70 कैंडिडेट्स, टॉप 20 कैंडिडेट्स को भी नहीं मिलती एम्स की दिल्ली की जो सीट है जनरल मेडिसिन की। तो ये 3.7 के रैंक पे मिल गई थी यहाँ पे। देखिए एक पॉइंट मैंने बताया था कि रूरल एरिया होने का क्या बेनिफिट है। एक्चुअली जो रूरल एरिया कैंडिडेट्स जिन्होंने मिनिमम 2 वर्क एक्सपीरियंस किया है, वर्क किया है रूरल एरियाज के अंदर, उनको 5% हॉरिजॉन्टल बेसिस पे रिजर्वेशन है। देखो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे रिजर्वेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो टोटल 100 यदि सीटें हैं जनरल की, उसमें से 5 सीटें आपको किसको दी जाएगी, सिंपल 5 सीटें किसको दी जाएगी, रूरल कैंडिडेट्स को। यदि नहीं है रूरल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं किया है तो वो सीटें उस कैटेगरी की नॉर्मल कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप भरेंगे, आपने यदि रूरल एरिया में काम किया है तो मार्क टिक ऑन दिस, डरने की कोई बात नहीं है। टोटल सीट्स कितनी थी सर इस बार, 45 अराउंड सीट थी। आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट देके और आप सीट पोजीशन देख सकते हैं। रिजल्ट के लिए आप एम्स INI जो रिसेंट रिजल्ट है वो जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि DNB स्पॉन्सर्ड सीट। देखो DNB स्पॉन्सर्ड सीट के अंदर पहला बेनिफिट ये है कि एक स्टेट मल्टीपल कैंडिडेट को भी स्पॉन्सर कर सकता है, फर्स्ट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मिनिमम वर्क डिफाइन नहीं किया हुआ है। मिनिमम जो जैसे 3 ईयर डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे, यहाँ में मिनिमम डिफाइन नहीं किया है कि आपको मिनिमम कितने ईयर सर्विस करनी है। तो जैसे मैंने जो बात की थी, जैसे उत्तराखंड के किसी सीनियर से बात की, उनको पता लगा कि वहाँ पे 1 ईयर के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप DNB स्पॉन्सर्ड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे NOC मिल गई। लेकिन ये NOC राजस्थान के अंदर शायद प्रोबेशन के बाद मिल जाएगी, लेकिन जहां तक मुझे पता लगा कि ये NOC महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर सर 5 या 10 ईयर्स करने के बाद में दी जा रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेट, आपको स्टेट से कंफर्म करना है कि सर मिनिमम, सो ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि मिनिमम 3 ईयर का वर्क होना चाहिए। यदि आप एवरेज लें इंडिया का, तो राजस्थान में कहीं 1 ईयर है, दिल्ली के अंदर जैसे कई जगह 1 ईयर है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन कई जगह ये 10 ईयर तक भी है मिनिमम वर्क। कंफर्म इट बाय योर दी कंसर्न स्टेट। रूल बाकी सेम है। सेम रूल क्या है सर, पहला रूल कि आपको स्पॉन्सर्ड, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो किसी भी स्टेट, सेंट्रल या ऑटोनोमस या PSU के, रेगुलर बेसिस पे आप हो, तो ये आप एलिजिबल होंगे। सेकेंड पॉइंट, आपको स्टेट या आपका कोई भी जो स्पॉन्सर कर रहा है वो आपको स्टाइपेंड देगा। यहाँ पे स्टाइपेंड आपको जो भी हॉस्पिटल है या जहाँ से भी आप DNB करेंगे वहाँ से आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि सर, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि INI-CT के लिए कि सर मिनिमम
एज क्राइटेरिया क्या है। देखो वहां पे निम्हेंस ने निकाला हुआ है कि 45 इज द मिनिमम क्राइटेरिया, बाकी किसी एम्स ने एज क्राइटेरिया नहीं निकाला हुआ है स्पॉन्सर सीट के लिए। यहाँ पे क्या है सर, डीएनबी के लिए जो डीएनबी की स्पॉन्सर्ड सीट है उसके अंदर की यदि आप किसी भी स्टेट के अंदर इन एलिजिबल है तो आपको डिवाइड किया जाएगा दोनों, नीट पीजी की काउंसलिंग से भी और डीएनबी स्पॉन्सर्ड की काउंसलिंग से भी। सेकंड, आप सीट को लीव कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप नेक्स्ट 3 ईयर के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे फॉर दिस काउंसलिंग। थर्ड पॉइंट, सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन है। सिंगल टाइम मींस कि फर्स्ट राउंड से पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया वही फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा मॉपअप राउंड के अंदर या सेकंड राउंड के अंदर। ऑलमोस्ट रूल है जैसा कि एम्स के आई सीटी के अंदर है कि आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर जिन्होंने पहले अप्लाई किया है वो है, और ओपन राउंड के अंदर एक न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। जबकि जो नीट पीजी के अंदर एवरी राउंड के अंदर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिंगल विंडो मिलेगी रजिस्ट्रेशन करने की फॉर ऑल द 3 राउंड्स। फीस है सर, जो फीस है वो है टोटल है 1,25,000, चाहे आप किसी भी जगह जाएं। आप चाहे गवर्नमेंट सेंटर के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप स्टेट के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कोई म्यूनसिपलिटी है वो यदि आपको ऑफर कर रही है डीएनबी, तो आपके लिए फीस सेम है 1,25,000, और स्टाइपेंड आपको आपकी स्पॉन्सर अथॉरिटी करेगी। ओके। अब यहाँ पे रिसेंटली 481 टोटल अप्लाइड किया था कैंडिडेट्स ने, उनमें से 401 को एलिजिबल किया हुआ है और 80 कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं किया था सेंट्रल ने, एनबीएमएस ने इस टाइम। देखो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है इस पोस्ट एमबीबीएस सीट्स का है, स्पॉन्सर्ड डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस सीट्स का, वह है कि ये ऑलमोस्ट लेट होती है। मतलब जब आपका ऑलमोस्ट मोपअप राउंड बहुत क्लोज होता है या थर्ड राउंड जो चलता है, सेकेंड राउंड फिनिश होने वाला होता है उसके बाद होती है। देखो एग्जाम रिजल्ट आया था 24 अगस्त को, और इसका जो सिर्फ नोटिस निकला था वो निकला था 18 दिसंबर को। ऑलमोस्ट सेकेंड राउंड फिनिश होने को आया था। सेकेंड क्या, ऑलमोस्ट हाँ थर्ड राउंड फिनिश हो गया होगा या मॉपअप राउंड फिनिश होने को आया होगा, तब जाके इसका नोटिफिकेशन आया था। और दिसंबर के अराउंड पे यहाँ पे इन्होंने एनओसी का फॉर्म निकाला था। तो और एनओसी का फॉर्म यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन दिया था ऑलमोस्ट 10 जनवरी को, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया था 20 जनवरी तक। एक पॉइंट यहाँ पे है कि जो नेगेटिव पॉइंट मैंने बोला कि इट टेक्स टू मच टाइम, बहुत लेट काउंसलिंग शुरू होती है। देखिए मॉपअप राउंड तो आप देखिए जस्ट अभी फिनिश हुआ है, 9 to 19 मंथ उनकी लास्ट ज्वाइनिंग डेट थी। फर्स्ट राउंड के अंदर देखिए 12 की रैंक पे हिंदूरा हॉस्पिटल मिला हुआ है, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। और रेडियो भी मिली हुई है 19 के रैंक पे यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, जो कि पिक नहीं की गई, शायद ड्रॉप कर दी गई। तो वापिस जो फाइनल जो रैंक आई उसमें 66 के रैंक पे देखिए वेस्ट बंगाल की जो रेडियो थी यहाँ पे मिली हुई है 19 के रैंक पे, जो कि ड्रॉप करके वापस मॉपअप राउंड के अंदर आई, और मॉपअप राउंड के अंदर 66 के रैंक के अंदर रेडियो की सीट पिक हुई है, और जो 68 के पे हिंदूरा हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल की सीट पिक हुई है। दिस इज द लिंक जहाँ पे आप सारे के सारे रिजल्ट या सारे के सारे काउंसलिंग की जो जो भी स्टेप्स है वो देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिख के कॉपी कीजिए इसको या फिर टाइप कीजिए आपके उसके अंदर। देखिए अब आपका डाउट है कि सर ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल, देखो ये बेनिफिशियल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, जिन कैंडिडेट्स को आपकी स्टेट के अंदर इन सर्विस बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए जैसे राजस्थान के अंदर कई जगह कई बार ऐसा होता है कि आपको पोस्टिंग ऐसी जगह दी जाती है जहाँ पे इन सर्विस बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आप थोड़े बैक हो रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि सर 5-6 ईयर हो गया है मुझे मेरे से, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली इस सर्विस के अंदर। तो ऐसे कैंडिडेट जैसे पंजाब के अंदर भी ऐसा है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसा है कि आप सिर्फ जो डिफिकल्ट ट्रेन जो एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं या फिर जो डिफिकल्ट एरियाज है उनके अंदर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। हर सीएससी पीएससी पे आपको जो हेल्थ सेंटर उससे मार्क्स नहीं दिए जाते। तो इन दोज फॉर दोज स्टूडेंट जो कि ऐसे वर्क से ऐसे डिफिकल्ट एरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है, ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, तो लेकिन डीएनबी या फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो दीज आर द बेनिफिशियल फॉर दोज कैंडिडेट्स। बहुत अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए, अप्लाई कीजिए और बेनिफिट लीजिए। आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है अबाउट दीज ऑल पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी काउंसलिंग के बारे में कोई भी, यू कैन कमेंट, यू कैन अप्लाई इन द कमेंट्स, you can post in the comments, I will try to clear these debt. Thank you, keep sharing, keep following.